வணக்கம். என் பேர் ஓவியா. நாங்கள் ஸ்ரீ ஆதிவராகநல்லூர் கிராமத்தில் இருக்கிறோம். எங்கள் கிராமத்தில் அடிப்படை வசதிகள்லாம் இல்லை, ரோடு சரியில்லை. எங்கள் ஊரில் நூலகம் இல்லை. எனக்கு புக்ஸ்லாம் படிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை. ஆனால் எங்கள் ஸ்கூலில் அதுக்கான வசதி இல்லை. அதனால் கன்னியா சம்பூர்ணா திட்டத்துலேருந்து புக்கெலாம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த புக்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஒரு இடத்துல வச்சு படிக்கணும்னு எங்களுக்கு இட வசதி இல்லை. அதனால் ஊரில் இருக்கிற நூலகத்தை ஓப்பன் பண்ண சொல்லி ஊராட்சி மன்ற தலைவர்கிட்ட பெட்டிஷன் கொடுத்துருக்கோம். அவங்க அங்கே இருக்கிற சேரு எல்லா இடத்தையும் நல்லா சுத்தம் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி உங்களுக்காக ஒப்படைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சீக்கிரமாக அந்த நூலகத்தை ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்தா எங்களுக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கும். வளரிறம் பெண்கள், அடலசன்ட் கேர்ள்ஸ்லாம் கொஞ்சம் போய் ஏதாவது ஒரு மீட்டிங் நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றா உட்காந்து படிப்போம். புக்கு படிக்கிறது மூலமாக எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு லட்சியத்தை அடையிறதுக்கு கொஞ்சம் முக்கியமான ஒரு தேவையாக இருக்குது. சீக்கிரமாக நூலகத்தை ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்தா எங்களுக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கும். हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकांक्षा है। मैं उत्तर प्रदेश भारत में रहती हूँ। मैं इस साल हाई स्कूल में पढ़ूंगी। मेरे पापा किसानी करते हैं, मेरी मम्मी भी उनके साथ में किसानी करती हैं। हमारा स्कूल यहाँ से 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वजह से हमें अकेले स्कूल जाना पड़ता है। मेरे जैसे कई लड़कियाँ हैं जो स्कूल नहीं जा पाती हैं। अगर हमारे गाँव में स्कूल होता तो सारी लड़कियाँ स्कूल जा सकती हैं। हमारे गांव में इंटर कॉलेज नहीं है, इसकी वजह से लड़के स्कूल नहीं जा पाती हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे गांव में इंटर कॉलेज हो ताकि सभी लड़कियां पढ़ सकें। मैं स्कूल जाती हूँ तो अपने सहेलियों के साथ में खेलती हूँ। मुझे खेलना बहुत पसंद है, जिसमें कि खो खो, कबड्डी मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है खेलने में। जिस दिन हमारे मम्मी पापा के पास पैसे नहीं होते उस दिन हम स्कूल नहीं जाते हैं। घर का सारा काम करते हैं, बर्तन धुलते हैं, पानी भरते हैं, खाना बनाते हैं। अगर मुझ में शिक्षा होगी तो मैं दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर पाऊंगी। इसलिए हमें एक उदाहरण देना है कि लड़कियों को भी पढ़ाएं। আমি ক্লাস 6-এ পড়ি। আমি টোসা ফ্রেন্ডস সোসাইটিতে পড়ি। লকডাউনের আগে আমি প্রতিদিন স্কুল যেতাম ও স্কুলে পড়া কোচিংয়ে তৈরি করতাম। পড়া হওয়ার পর আমি খেলতে যেতাম বন্ধুদের সাথে। খেলার পর গল্প করতাম। হঠাৎ একদিন আমি শুনলাম যে লকডাউন হয়ে গেল। আমি লকডাউন বলে আমি জীবনে কিছু ভাবিনি যে লকডাউন বলে কিছু হবে। আমি হরতাল শুনেছি কিন্তু লকডাউন কখনো শুনিনি। আমাদের স্কুল থেকে সব বাচ্চাকে মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক দিয়েছে, সবাই পেয়েছে কিন্তু আমি পাইনি। কেন? আমার মোবাইল নেই। একটাই মোবাইল আছে যেটা কাজে নিয়ে যায় আমার দাদা। আমরা গরিব মানুষ, আমরা রোজ কাজকর্ম করি, রোজই খাই, তো আমাদের স্মার্টফোন নেই। আমি প্রাইভেট টিউশনও নিতে পারছি না। এখানে খাবারই পয়সা নেই তো টিউশন কি দিতে পারবো? সিনিও এখানে বন্ধ। ঠিকই আমাদের ভালোই জন্য বন্ধ রেখেছে। আমার এখনো অবধি জোর আছে পড়াশোনা, কিন্তু 2-4 মাস আর গেলে আমার সেই জোরটা থাকবে না, সেই ইচ্ছাটা আগের মতো আর থাকবে। এটা নিয়ে আমার মনে অনেকই দুঃখ হচ্ছে। আর আবার এটাও নিয়ে হচ্ছে যে আমি বন্ধুদের ঘরেও যেতে পারছি না আর বন্ধুকে ডাকতেও পারছি না। কেন? এর কারণ আছে করোনা ভাইরাস। লকডাউনে তো একটাই বিপদ, কিন্তু আর একটা বিপদ আসলো, সেটা হলো আমফান। সেই আমফানের দিনটা আমি আজ পর্যন্ত ভুলতে পারবো না। আমাকে এত ভয় লেগেছে যে সেই দিনটা আমাকে মুখস্থ। সেই দিনটা হলো 18 মে। সারা রাতটা যে কি হলো আমাদের সাথে আমি বলতেই পারছি না। সেই আমফান এত বেশি ছিল যে আমাদের বাড়িতে আমি দেখেছি যে পুরো আলবেস্টার উড়ে ভেঙে পড়ে গেল। আমাদের খিড়কি থেকে পুরো জল, পুরো বিছানাতে জল এসে গেল। আমাদের রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টটা ভেঙে পড়ে গেল, বড় বড় গাছ ভেঙে পড়ে গেল। তখন আমি কি করবো আর জানি না। চারদিক থেকে কান্নার आवाज आती। मेरा नाम फिजा खान है। मैं हरियाणा राज्य में नूह जिले के ब्लॉक नूह में फिरोजपुर नामक गांव में रहती हूँ। मेरे गांव में पढ़ाई करने के लिए लड़कियों का माहौल कम है। यहाँ 8th कक्षा पास करने के बाद ही लगभग सभी लड़कियों को माता पिता घर पर रोक लेते हैं। लड़कियों को आगे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। अपने माता पिता को बहुत समझाना पड़ता है। मैंने 8वीं कक्षा पास कर ली है और मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। हमारे यहाँ लड़के लड़कियों में काफ़ी भेदभाव होता है, जैसे पहनावे में, खाने पीने में, पढ़ने में, घूमने फिरने में, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने आदि में। मैं बालिका मंच से जुड़ी हुई हूँ, जिसके तहत मैंने लड़कियों को
को स्कूल में होने वाली समस्याओं को चिन्हित किया। इसमें सबसे पहले हमारे स्कूल में लड़कियों को माहवारी के समय बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती और उन्हें बार बार घर जाना पड़ता। मैंने और बालिका मंच की लड़कियों ने HT मैम से बात की, उनको लिखित रूप में भी दिया, तब जाकर मैम ने स्कूल में पेड मशीन लगवाई। आज किसी भी लड़की को स्कूल से बाहर नहीं जाना पड़ता। मैं लड़कियों की समस्याओं के लिए हमेशा काम करूंगी। मैं खुद आत्मनिर्भर हो सकूं, इसके लिए मैं कंप्यूटर सीख और सिलाई सीखूंगी। थैंक यू। शिक्षा के लिए परिवार में कभी कभार आर्थिक संसाधन आड़े आती है, लेकिन विद्यालय में शिक्षकों की कमी मुख्य बाधक है। तालाबंदी और स्कूल बंद होने से निश्चित तौर पर पढ़ाई बाधित हुई। घर में रहने के कारण घरेलू कार्य में हाथ बटाना पड़ता है। जहां तक ऑनलाइन शिक्षा का सवाल है, मैं गांव से बिलोंग करती हूं। यहां ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर जैसे यंत्र का अभाव होने से पढ़ाई नहीं हो पाती है। मेरी आकांक्षा है सरकार खासकर बालिकाओं के लिए उचित माहौल एवं संसाधन जैसे कम दूरी पर विद्यालय, शिक्षक छात्र के अनुपात के अनुसार शिक्षकों की कमी को पूरा करें। कंप्यूटर कलाओं में दक्ष होना चाहती हूँ। हेलो। हेलो, हाँ मैम। कौन बोल रहा है? उर्मिला बोल रही है क्या? हाँ मैम। हाँ नमस्ते उर्मिला। हाँ मैम नमस्ते। कैसे हो? मैम ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और घर में सब ठीक है? हाँ मेरे घर में सब ठीक है, आपके घर में भी ठीक है? हाँ, तो उर्मिला मैं आपसे कुछ कोरोना के बारे में बातचीत कर सकती हूँ? हाँ मैम। तो ये बताओ कि आजकल जो पूरे देश में जो बीमारी फैल रही है, हाँ मैम। उसका क्या नाम है? कोरोना महामारी। कोरोना महामारी। और आप इस कोरोना महामारी के बारे में जब शुरुआत में आपने सुना, तो आपको कैसा लगा? मैंने जब शुरुआत में सुना, मेरे को पहले तो बहुत डर लग रहा था कि सारे मतलब कि पूरे इंडिया में फैल चुकी है, तो मेरे को बहुत डर लग रहा है। मैंने सोचा मैं मतलब कि है ना सबको सैनिटाइजर और मतलब जो गरीब लोग है ना उसको अनाज देना और मतलब और सैनिटाइजर, मास्क आदि देना चाहिए। मतलब मैंने बहुत सोचा। अच्छा, तो ये बताओ आप जब KGB हॉस्टल में रहते थे, हाँ मैम, और वर्तमान में घर में रह रहे हो, तो आपको दोनों में कैसा महसूस हो रहा है? मैम अगर मैं KGB में रहती तो ज्यादा मतलब सेफ रहती, क्योंकि हमें बाहर नहीं जाने देते हैं। अब मतलब घर में कोई बाहर काम होता तो जाना पड़ता है, लेकिन दूध लेने, सब्जी लेने मतलब दीदी के साथ जाना पड़ता है। मतलब मैं KGB में सेफ थी ज्यादा। अच्छा, तो आपकी जैसे अभी आप KGB में नियमित वहाँ पे रहते हुए शिक्षण कार्य कर रहे थे, है ना, पढ़ाई कर रहे थे यानी, और अभी आप घर पे रह के ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, तो दोनों में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? दोनों के बारे में बताओ अलग अलग। मैम जो हम स्कूल में पढ़ाई देते वहाँ पे ज्यादा समझ में आता है, मतलब ऑनलाइन में पढ़ाई देते इतना दिमाग नहीं लगता है ऑनलाइन में ज्यादा। वो जब स्कूल में पढ़ते हैं वो अच्छा लगता है वहाँ पे पढ़ना। अच्छा, और कैसा लग रहा है? मैम और मेरे को बहुत स्कूल की तो बहुत याद आती है, पता नहीं स्कूल कब खुलेगी। अब मतलब कि ऑनलाइन में तो इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है जैसे स्कूल में होती है। और जैसे स्कूल में पढ़ाई के अलावा और भी एक्टिविटीज होती थी आपके साथ में, गतिविधियां होती थी, हाँ, तो वो अब हो रही है या नहीं हो रही है? जैसे मान लो आपके साथ में होता था पुस्तकालय, खेल,
नहीं मैम, पुस्तकालय तो नहीं होता है, मगर खेल में सारी लड़कियों के साथ खेलते तो बहुत मजा आता था। अब यहाँ पे अकेले किसके साथ खेलो, खेले भी कहाँ। मम्मी तो मेरे को बाहर भी नहीं भेजती है। अच्छा, तो ये बताओ कि आप जो ये कोरोना महामारी है, हाँ एक तो खुद को लेके हाँ मैम। और एक दूसरों के प्रति कितने सचेत हैं आप? मैम मेरे को समझ ही नहीं है वापस। मतलब एक तो खुद के प्रति अपन होते हैं हाँ मैम। कि भाई कोई भी बीमारी हो जाती है तो खुद को अपन सेफ रखते हैं, सुरक्षा रखते हैं, और एक दूसरे की भी अपन को सुरक्षा रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? मैम हमें खुद की भी रखनी चाहिए और हमारे साथ साथ दूसरों की भी रखनी चाहिए। तो ये बताओ कि कोरोना महामारी से बचने के लिए अब तक अपन ने जो सावधानियां रखी हाँ मैम। रखी है ना, हाँ तो आगे भी इनको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और रखना चाहिए तो कैसे रखना चाहिए? मैम हमें अब आगे भी रखनी चाहिए और अभी भी रखनी चाहिए। तब तक ये कोरोना महामारी खत्म नहीं जाता तब तक रखनी चाहिए। और हमें मतलब कि है ना, कोरोना से बचने के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए और साथ साथ मास्क का प्रयोग करना चाहिए, है ना। अच्छा, जैसे और आप हमारे घर के आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, हाँ बाहर की और आगे की, शौचालय की। हाँ, अच्छा, ये बहुत बढ़िया बात है। और मैं ये कह रही हूँ कि जैसे केजीबी में अपन मीना मंच के सदस्य थे, हाँ मैम। है ना, तो वहाँ पे उसमें कस्तूरबा में आने वाली समस्याओं का समाधान अपन करते थे अपन एक साथ। तो वैसे ही अपन ने यहाँ पे भी एक ये महामारी एक समस्या है, हाँ तो आपने ऐसा कौन सा यहाँ पे कुछ किया है समाधान? हाँ मैम, मैंने किया। मतलब जो हमारे को मतलब कभी कभी मेरी दुकान पे आती ना बाहर से औरतें, हाँ, तब मैंने मेरे घर के आसपास सबको मैंने सैनिटाइजर भी दिया था और मास्क भी दिया था। घर के सामने आसपास रहते सबको दिया था। और हमारे घर के सबने बोला कि आसपास की सफाई रखनी चाहिए। हमने मतलब जो बोले थे ना वो हमने सब किया। सब किया। तो आपने कितने मार्क्स बना के बांटे? मैम मैंने मतलब कि 20 मार्क्स बना के मैं जो घर के आसपास जो मतलब कि दुकान पे आते हैं ना उसको भी दी। अच्छा, और सैनिटाइजर भी बांटे आपने? हाँ। कितने? 20। अच्छा, 20। बहुत अच्छा क्या आपने। अच्छा, ये बताओ कि आपके इस कोरोना महामारी से आपके जीवन पे क्या असर हो रहा है? मैम है ना, कोरोना महामारी से हमारी दुकान बंद रहती है, इसलिए मतलब थोड़ी पैसों की कमी होने लगी। इसलिए मेरी मम्मी कभी कभी 12 बजे तक दुकान खुली रखती है, इसलिए थोड़े बहुत ग्राहक आते हैं हमारे पास। थोड़ी मतलब कि पानी की और पढ़ाई में और मतलब पैसों में। अच्छा, ये परेशानी आ रही है ना। Sneha, she is Priyanka. We are both deaf. I am doing PhD and she is working. She will interpret my talk into Indian Sign Language. Now, I want to highlight few important acts in the NEP 2020. The policy does not state that right to language and communication for deaf children. It does not mention early identification and intervention for the children with disability. The framework for children of 0 to 3 years mentions nothing, and ECCE does not include disability department in its task force. Deaf people communicate through Indian Sign Language and speech. The technology for deaf children is absent, which should be part of early
intervention and school education. We also wonder why Indian Sign Language is pushed to NIOS when there is a National Institute on Indian Sign Language. Does it mean deaf children need not study in mainstream education? Disability is put in the basket of socio-economically disadvantaged group, but it is diverse subject and needs critical thinking and professionals to meet the needs of disabled children. They are in every part of the society. Specific measures need to be taken to include and retain disabled rural children in education. Thank you.